Hello guys, welcome back to another video, and in this video we'll be discussing about chapter 4, that is e-commerce and m-commerce and emerging technologies. And basically chapter 4 has about 34 head point answers, and we'll be dividing into two parts, that is part 1 and part 2. Part 1 will consider about 16 to 17 answers and part 2 will have 16 to 17 answers. So let's begin. Constraints considered while developing security architecture or great computing security. The cheat code is PEACE-Q, that is protection of credentials, interoperability of local security solution, exportability, single sign-on, support for multiple implementation, support for secure group communication. Explain the various components that are involved in e-commerce. As soon as you hear the word e-commerce, you should click in with UPI. जैसे ही ई कॉमर्स वर्ड सुना UPI क्लिक होना चाहिए. जैसे ही ई कॉमर्स वर्ड सुना वैसे ही UPI क्लिक होना चाहिए. सो द चीट कोड इज वेट UPI. एक्सप्लेन वेरियस कंपोनेंट्स दैट आर इन्वॉल्व इन ई कॉमर्स. एक्सप्लेन वेरियस कंपोनेंट्स दैट आर इन्वॉल्व इन ई कॉमर्स. ई कॉमर्स कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स क्या था? UPI, वेट UPI, दैट इज वेब पोर्टल, ई कॉमर्स वेंडर्स, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, यूजर, पेमेंट गेटवे एंड इंटरनेट नेट. Discuss various architecture of network system. So basically this is not partially a cheat code answer, it is very logical. So discuss the architecture of network system. The architecture is divided into two, that is 2-tier and 3-tier. 2-tier and 3-tier. 2-tier forms like presentation and database, and 3-tier is presentation, application, database. So the cheat code is 2-tier, 3-tier. 2-tier में आता है PD, that is presentation and database. 3-tier में आता है PAD, that is presentation, application and database. Differentiate between, this is an important one, differentiate between traditional and e-commerce. See, traditional business में क्या होता है? भागा दौड़ी, that is run, that is ran. ई-कॉमर्स में क्या होता है? सब फ़ोन पे होता है, that is PDF. So the cheat code is PDF ran BC. The cheat code is PDF ran BC. How the cheat code will click in? ट्रेडिशनल में क्या होता है? भागा दौड़ी, that is run, that is ran. एंड ई कॉमर्स कैसे? फ़ोन के थ्रू सब ऑपरेट करेंगे, कंप्यूटर के थ्रू सब ऑपरेट करेंगे, तो PDF, दैट इज़ PDF ran BC. सो पेमेंट, डिलीवरी ऑफ गुड्स. Then definition, this can be like 2 different points: fraud, resource focus, availability for commercial transaction, nature purchase, business scope and customer interaction. Explain the different e-commerce business model. See, इसको कैसे याद रखना है? पहले हम लोग B वाला करेंगे, फिर C वाला करेंगे, फिर G वाला करेंगे. तो फर्स्ट इज B2C, B2B, then B2G. फिर C वाले पे आते हैं, C2B, C2C and C2G. देन हम लोग करेंगे G2C. ठीक है? सो रिपीट. एक्सप्लेन द डिफरेंट ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स. B2C, B2B, B2G, C2B, C2C, C2G and G2C. एक्सप्लेन द स्टेप्स फॉलोड बाय यूज़र इन बाइंग गुड्स ऑनलाइन. तो अब आपका कोई भी फेवरेट ऑनलाइन वेबसाइट या फिर आप इमेजिन करो, समझो फ्लिपकार्ट. एज सुन एज यू ओपन फ्लिपकार्ट, यू हैव टू फर्स्ट लॉग इन, दैट इज योर कस्टमर लॉग इन पॉइंट, that is your customer login point. Then you search for products and select a product. Then you place order. प्लेस ऑर्डर करोगे तो आपको एड्रेस लिखने का आता है, वहाँ पे आपको पेमेंट गेट पे आता है, इधर मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करने का पार्ट, दैट इज़ दिस वन. देन द गुड्स गेट डिस्पैच्ड एंड शिपिंग होता है. फिर यू गेट अ डिलीवरी ट्रैक एंड देन COD ट्रैकिंग, दैट कैश ऑन डिलीवरी ट्रैकिंग. तो दिस इज़ बेसिकली वेरी लॉजिकल. जैसे फ्लिपकार्ट का ऐप ओपन करोगे, सबसे पहले कस्टमर लॉगिन करेगा, फिर वो प्रोडक्ट ब्राउज़ करेगा और सेलेक्ट करेगा, फिर वो प्लेस करेगा ऑर्डर, फिर वो पेमेंट गेटवे पे जाएगा, वहाँ से डिस्पैच और शिपिंग चालू होएगा
डिलीवरी को ट्रैक करेगा और COD ट्रैक करेगा. This answer basically I haven't written it completely, so I'll be discussing it in the next video. But right now I'm letting you know the cheat code. Discuss various risks associated with e-commerce transactions that are high as compared to general internet activities. The cheat code is TND, private quality needs of spiral. That is, do not disturb private quality needs of spiral. I'll be discussing it in the next video. Now, what are the various ways of protecting e-commerce business from intrusion? E-commerce, that is online businesses होते हैं, उनको किस चीज़ का डर रहता है? वायरसेस, हैकर्स. तो जैसे ही आप ई-कॉमर्स बिजनेस को थ्रेट जो प्रोटेक्ट करना है इंट्रूजन से सुनते हो, तो वैसे ही आपको क्या क्लिक होना चाहिए? वायरसेस एंड हैकर्स. सो द चीट कोड इज रेगुलर वायरसेस हैक सेंसिटिव पासवर्ड. रेगुलर वायरसेस हैक सेंसिटिव पासवर्ड. व्हाट आर द वेज ऑफ प्रोटेक्टिंग ई कॉमर्स बिजनेस फ्रॉम इंट्रूजन? कौन से टाइप के इंट्रूजन होते हैं ई कॉमर्स में? वायरसेस हो गया, हैकर्स हो गए. तो उनको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स करते रहेंगे, वायरसेस से प्रोटेक्ट करेंगे, हैकर्स से प्रोटेक्ट करेंगे, सेंसिटिव डेटा को अलग से एनालाइज करके संभाल के रखेंगे, पासवर्ड्स रखेंगे. नाउ एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ IT Act 2000 रिलेटेड टू ई कॉमर्स. ये चीट कोड वाला आंसर नहीं है, बट आई एम स्टिल डिस्कसिंग इट. तो सेक्शन नंबर 3, 4, 6. 3 + 4 + 6 इज 15 और ये 14. ठीक है, तो 3, 4, 6. 3 + 4 + 6 इज 15 और फिर 14. एक्सप्लेन द वेरियस न्यू मेथड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट. आई गेस मेरे को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं खाली रिपीट कर रहा हूँ क्या क्या है. UPI, IMPS, भीम, मोबाइल वॉलेट्स, क्रिप्टो करेंसी, मोबाइल बैंकिंग, EPS एंड USSD. Explain what do you mean by cloud computing and its characteristics. What do you mean by cloud computing and its characteristics? अभी क्लाउड पे एक साथ बहुत सारे लोग चीज़ें अपलोड कर सकते हैं खुद के ड्राइव पे. तो दैट इज़ मल्टी टेनेंसी. आप कितने भी, यू कैन टेक 1 TB पैक, यू कैन टेक 10 TB पैक. दिस इज स्केलेबिलिटी. फिर आपको जब भी ज़रूरत है आप तभी पैक लोगे. दैट इज़ ऑन डिमांड एंड यू विल पे पर यूज़. जैसे अगर आपने 1 महीने के लिए यूज़ किया तो आप 1 महीने के लिए पे करोगे, आप हर यूज़ के लिए पे करोगे. ठीक है. फिर वर्कलोड मूवमेंट, मतलब आप खुद के सर्वर पे से, ये जो आपका सर्वर है ये सर्वर फुल हो गया तो आप आपका सर्वर से वर्कलोड ट्रांसफ़र करोगे क्लाउड वाले सर्वर पे. तो वर्कलोड मूवमेंट. तो इसमें से आपको 2-3 पॉइंट भी क्लिक हो गए ना तो आपको आपका चीट कोड क्लिक हो जाएगा. तो व्हाट डू यू मीन बाय क्लाउड कंप्यूटिंग एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक? क्लाउड कंप्यूटिंग को क्या होता है? बहुत सारे लोग एक साथ खुद का डेटा अलग अलग सब अपलोड करते हैं. फिर उसके बाद पे पर यूज़ होता है, ऑन डिमांड होता है, वर्कलोड मूवमेंट होता है. तो वर्कलोड याद आ गया. फिर मल्टी टेनेंसी, दैट इज़ मल्टी याद आ गया. तो ऐसे चीट कोड बन जाएगा आपका. मल्टी रेपो वाइड वर्कलोड, दैट इज़ मल्टी टेनेंसी, रेजिलियंसी, इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी, पे पर यूज़, ऑन डिमांड, वाइड रेंज ऑफ नेटवर्क एक्सेस कैपेसिटीज़, वर्कलोड मूवमेंट. Explain some different types of cloud in cloud computing. Public chapter. तो आपने where did you study different types of cloud computing in a chapter called public chapter? In public chapter. Where did you study types of cloud computing? In public chapter. That is public cloud, community cloud, hybrid cloud and private cloud. Explain various components of mobile computing. Where are the components of mobile computing made? They are made in Mobile Cooperative Housing Society. Where are the components of mobile computing made? They are made in Mobile Cooperating Housing Society. That is mobile communication, mobile hardware and mobile software. Discuss some best practices of green computing. हम लोग को ग्रीन कंप्यूटिंग किसने बताया? डॉक्टर MRC ने. Who made us known to green computing? Dr. MRC. Who made us known to green computing? Dr. MRC. Some best practices of green computing हमको किसने बताया? Dr. MRC ने बताया. Develop a sustainable green computing plan. Recycle. Make environmentally sound purchase decisions. Reduce paper consumption and conserve energy. Limitation of mobile computing. सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है मोबाइल कंप्यूटिंग का? मोबाइल कंप्यूटिंग की वजह से ह्यूमन का जो पोटेंशियल है, ह्यूमन का जो
पोटेंशियल है वो वेस्ट हो रहा है, तो पोटेंशियल ह्यूमन से याद आना चाहिए. व्हाट इज़ द बिग लिमिटेशन ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग? तो ह्यूमन का जो पोटेंशियल है वो वेस्ट हो रहा है ना. लिमिटेशन ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग की वजह से क्या हो रहा है, ह्यूमन का पोटेंशियल वेस्ट हो रहा है. तो पोटेंशियल ह्यूमन याद आना चाहिए, पोटेंशियल ह्यूमन याद आना चाहिए और उसके बाद टिप्स लगा देना. पोटेंशियल ह्यूमन याद आना चाहिए और उसके बाद टिप्स लगा देना. दैट इज पोटेंशियल हेल्थ हज़ार्ड्स, ह्यूमन इंटरफेस विद डिवाइस, ट्रांसमिशन इंटरफियरेंस, insufficient bandwidth, power consumption and security standards. Explain various application areas of virtualization. See, virtualization का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, बट मैं चीट कोड लिंक करने के लिए आपको थोड़ा एक स्टोरी बता रहा हूँ. जैसे ही वर्चुअल सुनते हो क्या दिमाग में आता है? यू रिमेंबर वी हैड स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट, वर्चुअल आउटपुट, ऑडियो विजुअल इज़ नथिंग बट वर्चुअल, राइट? तो उसमें पीपीटी आ जाता है. और पीपीटी को आप कहाँ पे सेव करते हो? हम सेव करने को बोलेंगे कहाँ पे अप्लाई करते हो? मेमोरी कार्ड में. दैट इज सैनडिस्क. याद है? SD कार्ड भी बोलते हैं, SD कार्ड. तो एक्सप्लेन वेरियस एप्लीकेशन एरियाज ऑफ वर्चुअलाइजेशन सुना, वर्चुअल से विजुअल आउटपुट का फॉर्म क्या है? पीपीटी को कहाँ पे सेव करते, दैट इज कहाँ पे अप्लाई करते, एप्लीकेशन एरिया कहाँ पे? SD कार्ड में. तो SD PPT दैट इज सर्वर कंसोलिडेशन, डिजास्टर रिकवरी, पोर्टेबल एप्लीकेशन, पोर्टेबल वर्क स्पेसेस, टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग. एंड द लास्ट वन फॉर दिस वीडियो. So let's hold the horses and start with the last part, that is explain areas in which the risk associated with bring your own device program can be classified. Explain areas in which the risk associated with bring your own device can be classified. अभी देखो, bring your own device स्कीम में हम लोग खुद का डिवाइस कंपनी में लेके जाते हैं और खुद का डिवाइस यूज़ करते हैं. तो उसमें क्या रिस्क क्लासीफाई हो सकते हैं? पहले तो डिवाइस का रिस्क है एक, फिर नेटवर्क का रिस्क है, फिर application risk or implementation risk. So the cheat code is DANI, that is device risk, application risk, network risk and implementation risk. So that's it for this video. For next video, please like, subscribe to my channel and ring the notification bell, and the Telegram group link is in the description below. Please join for the annotated PDFs and notes. Thank you.